Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I'll be giving you some recent updates about the PhD admission. And since most of you have a doubt कि उस news से related there were some terms जिसके बारे में बच्चों को नहीं पता था, तो I'll also help you with that. So, okay, starting from what was the news? So there was a latest news that a retired faculty can only be a supervisor to protect the academic and practical interests of the students. So this is the news. I'll explain कि इस news में क्या है, क्या बात की गई है. एंड ऑल्सो देयर वॉज वन थिंग दैट हु इज़ अ सुपरवाइज़र, जिसको कि हम गाइड भी कहते हैं. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट था कि गाइड क्या होता है, एक सुपरवाइज़र क्या होता है आपकी पीएचडी में, उसका क्या रोल होता है एंड क्या इंपॉर्टेंस है उस इंसान की आपकी पीएचडी में, आपकी पीएचडी जर्नी में. सो आई विल ऑल्सो टेल यू दैट. सो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी. So okay, let's start today's video and I really hope that this video will be helpful to you. So last तक देखना because if you are a PhD aspirant तो ये वीडियो आपकी बहुत काम आने वाली है. Okay, so starting from news क्या थी, there was a news that a retired faculty can only be a co-supervisor to protect the academic and practical interests of the student. Okay, so as the news says कि कोई भी retired faculty है वो आपकी केवल एक सुपरवाइजर हो सकती है. ठीक है. सो एक्चुअली दिस न्यूज़ केम फॉर ऑल द पीएचडी स्कॉलर्स. यूजुअली व्हाट हैपेंस इज, नाउ फर्स्ट आई विल टेल यू दैट हु इज़ अ गाइड और अ सुपरवाइजर. सो गाइड और सुपरवाइजर एक ऐसा डॉक्टरेट इंसान है, ठीक है, एक पीएचडी होल्डर है, एक आपकी यूनिवर्सिटी का फैकल्टी मेंबर है, जो कि आपकी पीएचडी जर्नी में आपकी स्टार्टिंग से लेके आपके लास्ट तक रहता है. सो बेसिकली आपकी स्टार्टिंग के रिसर्च फेज से लेके आपके ओरल एग्जामिनेशन तक, जो आपका लास्ट का स्टेज होता है वाइवा वाला, वहाँ तक आपके साथ रहेगा, वो होगा आपका गाइड. ओके, सो गाइड और सुपरवाइजर आपके पीएचडी में आपको बताते हैं, दे एक्ट एज अ गाइड, मतलब एज अ मेंटर. आपके इंटरनल एक्चुअली क्रिटिक वो होंगे, आपके इंटरनल सुपरवाइजर वो होंगे जो आपको आपकी हर एक स्टेज में हेल्प करेंगे. सो इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग टू डू पीएचडी और एनी अदर यूजी पीजी प्रोग्राम दिस ईयर, सो आई हैव अ प्लेटफॉर्म फॉर यू विच इज कॉलेज विद्या, विच विल बी हेल्पफुल टू यू इन योर जर्नी. बिकॉज कॉलेज विद्या आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बताता है, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज बताता है, देयर इज अ कंपैरिजन एंड देयर इज अनदर ऑप्शन एज वेल विच इज द EMI वन. सो यूनिवर्सिटीज ऑफर नहीं करती EMI ऑप्शन, बट कॉलेज विद्या ऑफर कर रहा है. आप अपनी पढ़ाई EMI के थ्रू कर सकते हैं एंड इट विल बी हेल्पफुल टू यू इन योर फाइनेंशियल जर्नी. सो राइट नाउ देयर इज अ ग्रेट न्यूज दैट दे हैव लॉन्च्ड अ न्यू फीचर ऑन देयर वेबसाइट विच इज द कॉलेज विद्या सब्सिडी. Now students will be able to receive a subsidy of up to 10,000 once they take admission in any university. So for now let's explore the website. So there are various UG, PG and other online courses. You can select the course you want, fill up some basic details and then answer a few questions. The AI model will then accordingly list the suitable online university or education providers. All the online universities listed here are government approved. You can get two options here. If you want, you can directly talk to the actual university officials or you can connect with college with the experts for the free audio video career counseling as well. These counselors will stay connected with you from the start of admission till your placement. And with Add to Compare, you can easily compare the universities you like based on 30 plus important factors like fees, approvals, placement, student rating, EMI facility, etc. And a good benefit with College Vidya is for fees that they give you an EMI option, which even if the university doesn't. And the best part is College Vidya redirects you to the authentic university website, which prevents you from fake ones and the possible scams. They also provide you placement support services and online career booster programs. So through this portal, you can directly apply to thousands of jobs and paid internships as well. And you can look for courses of UG courses, PG courses, PhD program, foreign PhD programs. सबके सब वहाँ पे mention कर दिया गया है. So मैं College Vidya का link description में डाल दूंगी. Make sure to check it out. And College Vidya is offering something which no one else is. So please check it out because it will be helpful to you in your academic journey. So basically उनकी responsibilities होती है helping the students select the coursework. So आपका जो भी coursework होगा, ठीक है, आपकी जो research होगी वो कैसे काम करेगी, उसके stages क्या होंगे, वो decide करेगा आपका guide. आपको actually आप जो भी जिस भी stage में हैं, ठीक है, आपको हर एक चीज़ के लिए approval, आपको हर एक अपने approval के लिए basically आपको अपने गाइड पे रिलाई करना पड़ेगा बिकॉज वो उसको अप्रूव करेंगे. उसके बाद एक आपका वाइवा होगा जो आपके अलग अलग यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज आएंगी. ठीक है, सो देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया फॉर इट, बट वो गाइड आपसे रिफाइंड करवा के जाएगा. ठीक है. सेकेंड, वो आपका शेप करता है, रिफाइन करता है स्टूडेंट का डिसिप्लिन. सो आपकी रिसर्च में आपको गाइड करना, आपको डिसिप्लिन करना, क्या चीज़ें कैसे होंगी, बिकॉज बीइंग अ PhD स्कॉलर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी होंगी, ठीक है, और आपकी लाइफ में नहीं होंगी. सो लाइक PhD में देयर आर नो टीचर्स बट देयर आर गाइड्स.
गाइड्स होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। देयर यू हैव दैट वन गाइड जो आपकी पूरी पीएचडी जर्नी में आपको बताएगा कि इफ दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट, दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू दिस, ये आपको ऐसे करना है या आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। सो अ गाइड इज़ समवन जो आपकी हर एक स्टेज में आपको हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट इज गाइडिंग द स्टूडेंट स्टडीज़। तो आपके जो भी पढ़ाई से रिलेटेड आपकी चीज़ें होंगी उसमें आपको गाइड करेगा, ठीक है। आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपकी रिसर्च से रिलेटेड, रिसर्च प्रपोजल हो गया आपका, आपके जो रिसर्च पेपर्स हो गए, आपके अलग अलग स्टेजेस जो हैं, आपके मेथडोलॉजी सही है नहीं है, आपकी रिसर्च में काम करेगी नहीं करेगी, वो आपका गाइड आपको बताता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग द स्टूडेंट्स रिसर्च। ऑर्गेनाइज करना, स्टेजेस बताना, आपको पहले ये करना है, आपको दूसरी बार ये करना है, ऐसे सेटल करो, दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस, ये भी आपको गाइड बताएगा। नेक्स्ट, एंड एक्टिंग एज एन इंटरनल एग्जामिनेशन फॉर द स्टूडेंट्स थीसिस। सो इफ़ यू आर अ पीएचडी स्कॉलर, लास्ट में जाकर आपको थीसिस सबमिट करनी होती है, ठीक है। सो दैट थीसिस सबमिशन इज समथिंग जो आपके पहले इंटरनल सुपरवाइजर कौन हो गए, आपके गाइड हो गए। पहले आप अपनी जो थीसिस है वो आप किससे अप्रूव करवाएंगे, मतलब आप अपने गाइड को दिखाते हैं कि नाउ दिस इज माई थीसिस, दिस इज द वर्क आई हैव डन एंड दीज इज। सो वो देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद वो जाके आगे उसे सेंड करते हैं, ठीक है, या किसी को सजेस्ट करते हैं, यूनिवर्सिटी पे जाके लेके जाते हैं। सो इंटरनली आपका जो भी चीज़ें कर रही हैं वो आपकी गाइड कर रहे हैं, ठीक है। वो एक फीमेल हो सकती है, वो एक मेल हो सकते हैं। सो अ पीएचडी सुपरवाइजर एक्ट एज अ मेंटर, योर एडवाइजर एंड अ चीयर लीडर। तो आपकी मोटिवेशन के लिए अगर आपके पास एक अच्छा गाइड है, आपकी पीएचडी ट्रस्ट में ईजी हो जाती है, ठीक है। और अगर आपका ऑन द अदर हैंड अगर आपका एक्चुअली गाइड समवेयर अच्छा नहीं है, आई वोंट से कि अच्छा नहीं है, बट ठीक है आपकी उनके साथ नहीं बन रही है, तो आपको पीएचडी में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स देखनी पड़ सकती हैं। इसीलिए आपकी पीएचडी की जर्नी में, जस्ट लाइक कॉलेज की जर्नी अगर हम देखें, ठीक है, कॉलेज में हमारे टीचर्स हमारे कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। सो नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ टीचर्स। अगर आपको शायद कोई एक टीचर नहीं पसंद, देन यू हैव अदर टीचर्स एज वेल, राइट। तो आप उनसे सीख सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि ठीक है मुझे उनके साथ मेरी अच्छी मैचिंग होती है, इनके साथ नहीं हो रही, इट्स ओके। बट आपका गाइड केवल एक ही होगा। सो जो एक गाइड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। They can help make the students' research content more creative, bring the best outcome and encourage the student to work hard. वो आपके कंटेंट को, आपके रिसर्च को क्रिएटिव बनाते हैं, ठीक है। वो आपके अंदर का बेस्ट आउटकम लेके आते हैं। आपके अंदर जो भी डेडिकेशन आपका जो है, ठीक है, उसको सही जगह पे लगाना। नॉलेज आपके पास है पर नॉलेज को सही से इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो गाइड आपको बताएगा। एंड इंकरेज द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड। आपको काम करने के लिए इंकरेज करना, आप अच्छे से काम करें, जी लगा के काम करें, वो भी वहाँ पे आपका गाइड है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट कि इसी में आपकी क्या न्यूज़ आई थी। सो द न्यूज़ वाज दैट इफ अ रिटायरिंग फैकल्टी मेंबर वर टू टेक न्यू पीएचडी स्कॉलर्स जस्ट बिफोर रिटायरमेंट, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट वुड फेस डिसरप्शन इन गाइडेंस। तो ये हमारे यूजीसी के चेयरमैन ने कहा है, जगदीश कुमार ने कहा है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, आपका गाइड है, ठीक है। गाइड यूजुअली बिकॉज काफ़ी एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो अगर उनका कोई रिटायरिंग टाइम आता है तो व्हाट हैपेंस, अगर मेरे कोई गाइड है, ठीक है, मैंने 1 साल उनके अंदर काम किया है, उसके बाद वो रिटायर हो रहे हैं, सो मैं उनकी जगह अब कोई और मेरे ऊपर आ जाएगा जो मुझे सुपरवाइज करेगा। सो उस एक टाइम पीरियड में बहुत सारी चीज़ें मैंने उनके अंडर करी होती हैं, और अगर वो चले जाएं तो डिस्ट्रप्शन हो सकती है मेरी पीएचडी जर्नी में। मतलब मेरी पीएचडी जर्नी में मुझे दिक्कत हो सकती है, बिकॉज दे विल बी अ लॉट ऑफ चेंजेस। अगर जब नया गाइड आएगा तो वो बहुत सारे चेंजेस लेके आएगा, एंड वी कैन सी सम चेंजेस इन दैट पार्ट एज वेल। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गाइड आपको ये देखना होगा। अब जैसे कि यूजीसी ने कहा है, देयर आर सम रेगुलेशंस ऑन फैकल्टी रिटायरमेंट आर्ग्यूइंग दैट दीज रोल डिमिनिश द कंट्रीब्यूशन ऑफ पीएचडी सुपरवाइजर अप्रोचिंग रिटायरमेंट। सो जो भी सारे प्रोफेसर जो रिटायरमेंट की तरफ आ रहे हैं, एक्चुअली उनको कहा गया, उनके लिए रूल्स आए गए हैं ताकि जो पीएचडी का स्कॉलर है उसको ज़्यादा अब प्रॉब्लम्स ना फेस करनी हो, ठीक है। So, under the UGC 2024 regulations, which have been implemented by Central University in the past 2 years, faculty members with less than 3 years of service before retirement are prohibited from taking on new research scholar. So, जो भी सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनकी रिटायरमेंट का टाइम अब 3 साल से कम रह गया है, ठीक है, या फिर वो 3 साल में रिटायर होने वाले हैं, उनको नए पीएचडी स्कॉलर्स अब नहीं मिलेंगे। सो दिस इज़ द बिगेस्ट न्यूज़ कि अगर आपको ऐसे फैकल्टी मेंबर हैं जो अब 3 साल बस आपके बचे हैं, ठीक है, रिटायर होने के लिए, तो आपको अब कोई नया पीएचडी स्कॉलर नहीं मिलेगा। नाउ एज अ पीएचडी स्कॉलर, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3 साल में अगर वो रिटायर होने वाले हैं, उसके बीच में ही बी बिजी विद हिज रिटायरमेंट थिंग्स, ठीक है, तो आपकी पीएचडी में फोकस नहीं कर पाना, उसके बाद उनके जाने के बाद नया सुपरवाइजर आ जाना, उनकी क्या पता काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हों जो आपके आइडियोलॉजी, आपके पर्सपेक्टिव से क्लैश करें, और आप रिसर्च के एक ऐसे स्टेज में हो सकते हैं जहाँ पे आप अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएँ। सो इट्स बेटर कि आपको जो गाइड हो वो
आपकी पूरी पीएचडी जर्नी में आपके साथ रहे, ताकि हर एक चीज़ उनके अकॉर्डिंग चले, आपके अकॉर्डिंग चले। सो द न्यूज़ आगे, जो न्यूज़ है वो आगे कहती है, द रेगुलेशन स्टेट दैट फैकल्टी मेंबर्स विद लेस देन 3 years ऑफ सर्विस बिफोर सुपर एन्यूएशन, मतलब जो रिटायरमेंट है, शेल नॉट बी अलाउड टू टेक न्यू रिसर्च स्कॉलर अंडर देयर सुपरविजन। हाउएवर सच फैकल्टी मेंबर्स मे कंटिन्यू टू सुपरवाइज पीएचडी स्कॉलर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंटिल देयर रिटायरमेंट एंड मे सर्व एज को सुपरवाइजर्स आफ्टरवर्ड, बट नॉट बियॉन्ड द एज ऑफ 70। तो 70 के बाद तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट अगर आप 70 से पहले हैं और आपने रिटायरमेंट ले ली है या फिर आपके 3 साल बचे हैं, तो आप को सुपरवाइज़र बन सकते हैं, बट आप सुपरवाइज़र नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो आपका अगर कोई ऐसा सुपरवाइज़र अभी है तो वो आपका सुपरवाइज़र नहीं रहेगा, ठीक है, वो आपका को सुपरवाइज़र बन जाएगा, आपके अंडर एक सुपरवाइज़र फिर आपके पास रखा जाएगा। क्लियर? पीएचडी स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू चेंज देयर प्राइमरी सुपरवाइजर्स व्हेन देयर गाइड रिटायर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर थीसिस प्रोग्रेस। सो बेसिकली यही एक चीज़ होती है कि उनको अपने प्राइमरी सुपरवाइज़र को हटाना होता है, जिसकी वजह से उनकी थीसिस में डिसप्शंस होते हैं, आप उनकी पढ़ाई के बीच में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। सो इसीलिए स्टेप लिया गया है, जो कि एक्चुअली बहुत अच्छा है। मुझे न्यूज़ सुन के बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज आई हैव ऑल्सो सीन अ केसेज जहाँ पे जो फैकल्टीज हैं रिटायर हो रही होती हैं, जा रही होती हैं। सो अगर आप एक ऐसे हैं जो आप जाने वाली स्टेज में हैं, तो पीएचडी बीइंग अ पीएचडी स्कॉलर आपको बहुत सारे पढ़ाई में और अपनी थीसिस की प्रोग्रेस में आपको डिफिकल्टीज फेस करनी होती है। एंड पीएचडी कैसी चीज़ है जहाँ पे आप एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेंगे। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर ऑल द पीएचडी स्कॉलर्स। एंड आई ऑल्सो होप दैट आपको समझ में आ गया होगा कि एक गाइड क्या होता है, गाइड की इंपॉर्टेंस क्या होती है, वो आपकी पीएचडी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो व्हेन आई एक्चुअली रेड दिस न्यूज़, तो आई वाज क्वाइट हैप्पी कि दिस इज़ अ वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में यूजुअली ये होता है, आपके जो प्रोफेसर्स होते हैं वो बहुत बड़े एज के होते हैं, ठीक है, 1-2 साल में रिटायर होने वाले होते हैं, आप उनके अंडर स्कॉलर बन जाते हैं। नो मैटर कितना नॉलेज है, बहुत अच्छा फेज आपका वो 1-2 साल रहा होगा, बट वंस ही विल और शी विल रिटायर, आपको आपकी थीसिस में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि नया सुपरवाइजर आएगा, नए पर्सपेक्टिव के साथ आएगा, उसको आपकी रिसर्च में बहुत सारी दिक्कतें दिख सकती हैं, चेंजेस बहुत सारे बोले जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी पीएचडी अल्टीमेटली डिले हो सकती है। एंड आप डिले बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप एंड अ वेरी गुड इनिशिएटिव।